Modern Stars. Today you will write question and answer of chapter 6. Chapter name is North America. Okay, so student, take your geography book and copy both. So open page number 79 and start writing question number 1A. First A. Question is, note down question number 1A. Question is, the supercontinent that disintegrated to form the present continents. It means आपको सुपर कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है. वो सुपर कॉन्टिनेंट कौन था, किस नाम से जाना जाता था, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स में जो कन्वर्ट हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आंसर इज answer is Pangea. Okay, Pangea is the right answer. Pangaea, Pangea, जो कि सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था. एक लार्ज मास कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, और इसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, लॉरेंस एंड गोंडवाना लैंड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट B is the German geophysicist who promulgated the theory of continental drift. Okay, it means the German geophysicist who promulgated the theory of continental drift की थ्योरी किसने दी थी, वो कौन से जर्मन जियोफिजिसिस्ट थे, उनका नाम लिखना है इस क्वेश्चन में. फर्स्ट, the German geophysicist who promulgated the theory of continental drift. Okay, so right answer of this question is Alfred Wegener. Okay, right answer is Alfred Wegener. And question number C. Question number C is a narrow land mass linking North and South America. इट मीन्स वो नैरो लैंड मास के बारे में लिखना है, उसका नाम लिखना है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को लिंक करता है. अ नैरो लैंड मास लिंकिंग नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, आंसर इज Isthmus of Panama. Okay, right answer of question number first C, Isthmus of Panama, ISTHMUS. Isthmus of Panama, PANAMA. Okay, next question, question number D. Okay, is world's greatest inland water body. It means जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, उसका नाम लिखना है. कौन सा जो है इनलैंड वाटर बॉडी कौन सा है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज द ग्रेट लेक्स. द ग्रेट लेक्स. ओके, द ग्रेट लेक्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ग्रेट लेक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट E. The narrow stretch of water separating Asia and North America. It means the narrow stretch water separated. Stretch water, it means वो narrow stretch water का नेम लिखना है आपको, जो कि सेपरेट करता है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को. सो आंसर इज Bering Strait. Bering Strait, BERING, Bering Strait, STRAIT. Okay, next question, question number F. Question number first F is the type of mountain. The type of mountain. Okay, the type of mountain which the western. One minute. Western Cordilleras characterized. Okay, so उस माउंटेन का नाम लिखना है. So right answer of this question, answer is Youngfold Mountain. Answer number F, Youngfold Mountains. Next question, question number G is first G. An oceanic ridge formed due to divergent
प्लेट बाउंड्री, इट मीन्स उस ओशियनिक रिज के बारे में लिखना है। फॉर्म ड्यू टू डाइवर्जेंट, जो कि डाइवर्जेंट की वजह से डेवलप हुई थी। इट मीन्स ये जो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट में होता है जो प्लेट होती हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं, तो जो वीक प्लेट होती है वो स्लिप हो जाती है और नेक्स्ट प्लेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। ऐसे ही डाइवर्जेंट मूवमेंट भी होता है। ओके, तो उसके थ्रू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के थ्रू जो है ओशियनिक रिज डेवलप होता है, फॉर्म्ड होता है, तो उसका नेम लिखना है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मिड एटलांटिक रिज, वो है मिड एटलांटिक ridge. Mid Atlantic ridge is the right answer of question number first G. Next question, question number 4. After completing question number 1, you will write question answer of question number 4A. You will write question number 4A. So question is, explain the arrangement of oceans. Explain the arrangement of oceans and continents before they started drifting apart. Drifting apart start होने से पहले ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का अरेंजमेंट क्या था उसको एक्सप्लेन था, कैसे ओशियन उस तब था और कैसे कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सो राइट, स्टार्ट राइटिंग। ओके, द 7 continents as they appear today were joined together in one huge continental mass or called Pangea. Okay, it means जो 7 continent आपके शो होते हैं ये 4 बिलियन ईयर्स एगो जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था, एक ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था जो कि इसको पेंजिया कहते हैं। फुल स्टॉप। पेंजिया was surrounded by large mass of water, और पेंजिया के चारों तरफ जो है आसपास जो है एक बहुत बड़ी ह्यूज मास ऑफ वाटर और यूनिवर्सल ओशियन जिसको नोन एज पैंथालासा, कहते हैं। फुल स्टॉप। इनिशियली पेंजिया ब्रोक अप, इनिशियली पेंजिया जो है ब्रोक हो गया था इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंट, जो कि 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स में कन्वर्ट हो गया, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। ओके, लॉरेशिया फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, while साउथ अमेरिका इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इट मीन्स नॉर्थ अमेरिका जो है वो लॉरेशिया का मेजर पार्ट है और साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का, जो कि पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ये उसका पार्ट है। फुल स्टॉप। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th century, द जर्मन जियोफिजिसिस्ट एल्फ्रेड वेगेनर गेव द फर्स्ट कंप्लीट स्टेटमेंट ऑन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में सबसे पहले एल्फ्रेड वेगेनर ने, जो जर्मन जियोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में कंप्लीट स्टेटमेंट दिया था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही स्पोक ऑफ हाउ द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड, कि कैसे कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुए थे टू वेयर दे स्टैंड टुडे, जहां वो आज हैं और जिस शेप में हैं, जिस तरह से हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले जर्मन जियोफिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4B. Enumerate the major seas, oceans surrounding the continent of North America. Okay, it means North America के आसपास जो भी मेजर सीज हैं, ओशियन है, उनके बारे में लिखना है। सो राइट आंसर इज 4B. North America is separated from Asia by the narrow Bering Strait in the northwest and is linked with South America. Okay, South America by the narrow Isthmus of Panama. Full stop. Okay, North America जो है is separated from Asia, ये एशिया से सेपरेट होता है किसकी वजह से? नैरो बेरिंग स्ट्रेट की वजह से। इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट में, एंड इज लिंक्ड, और लिंक्ड किसकी वजह से होता है? लिंक्ड विद साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से जुड़ता है बाय द नैरो
Isthmus of Panama. Isthmus of Panama की वजह से full stop. The continent is bounded by, it means कौन सा continent? North America. The continent is bounded by Arctic Ocean in the north, semicolon, Gulf of Mexico and Caribbean Sea in the south. South में Gulf of Mexico है और Caribbean Sea है, and the Atlantic and Pacific Oceans was its eastern and western shores respectively. Okay. Next question, question number 4C. Question number 4C. Why have deserts developed in the southwestern part of North America? Name the important deserts of this region. Okay. It means deserts क्यों साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साउथ वेस्टर्न पार्ट में डिजर्ट क्यों डेवलप हुआ था और उन डिजर्ट्स का नाम लिखना है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4C. स्टार्ट राइटिंग. द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलरास, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलरास क्रिएटेड रेन शैडो कंडीशंस, जिसकी वजह से रेन शैडो कंडीशन जो है डेवलप होता है, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट डिजर्ट रीजन, जिसकी वजह से 4 इंपॉर्टेंट जो है डिजर्ट रीजन डेवलप होते हैं, ऑल इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. किस एरिया में? साउथ वेस्टर्न पार्ट में. सम इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स ऑफ द रीजन आर ग्रेट बेसिन डिजर्ट, ओके, मोजावे डिजर्ट एंड Sonoran desert, okay, and Chihuahuan desert, okay. So these are desert, okay, Chihuahuan deserts, okay. Listen again. Answer number C. The existence of the western Cordilleras क्रिएटेड रेन शैडो कंडीशन, वहां पर रेन शैडो कंडीशंस की वजह से जो है डिजर्ट क्रिएट हुए थे, दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 इंपॉर्टेंट डिजर्ट रीजन डेवलप हुए इन ऑल इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप. सम इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स ऑफ द रीजन आर द ग्रेट बेसिन डिजर्ट, द मोजावे डिजर्ट, द Sonoran desert and the Chihuahuan desert, okay. तो ये जो है 4 डिजर्ट हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में डेवलप हुए थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4D, okay. क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 3 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. किसी 3 कंट्री का नेम लिखना है और उसकी कैपिटल का नेम लिखना है, ओके. लिस्ट एनी 3 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑल्सो मेंशन द कैपिटल्स ऑफ ईच ऑफ द 3 नेशंस. मीन जो 3 नेशंस जिनके बारे में आप लिखेंगे, कंट्रीज के बारे में, उनकी कैपिटल्स का नेम भी लिखना है, ओके. सो स्टूडेंट, फर्स्ट कनाडा, फर्स्ट आपका है कनाडा, CANADA, और इसकी कैपिटल जो है वह है ओटावा, OTTAWA, ओटावा, ओके. एंड नेक्स्ट आपका जो नंबर 3 लिखना है ना, तो 22 जो कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका में, कंप्लीटली कंट्रीज 22 है, तो आपको कोई भी 3 कंट्रीज लिखना है. सो नेक्स्ट जमैका, JAMAICA, जमैका, ओके. और इसकी जो कैपिटल है वो है किंगस्टन, KINGSTON, किंगस्टन, ओके. नंबर 3 आपको लिखना है कोई तीसरा, ओके. सो नंबर 3 पनामा,
PANAMA, पनामा, और इसकी जो कैपिटल है वो है पनामा सिटी। ओके, PANAMA, पनामा सिटी, CITY। ओके, पनामा सिटी। तो फर्स्ट कंट्री कनाडा और उसकी कैपिटल है ओटावा, एंड सेकेंड आपका जमैका और उसकी कैपिटल है किंगस्टन, थर्ड पनामा और पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी। ओके, तो आपको कोई भी 3 कंट्रीज लिखनी थी। सो ओके, these are 3 countries with capital of North America. So it's enough for today.